جب میرا شوہر نامرد نکلا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا جو میری خواہش پوری کر سکے تاکہ میں کسی کو شوہر کا راز نہ بتاؤں۔ اور پھر ایک دن میں حاملہ ہو گئی تو شوہر نے غصے میں آ کر مجھ سے ایسا کام کیا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ شادی کی رات اپنے شوہر کی بدحواسی دیکھ کر میں بے حد حیران تھی۔ میں نے شادی کی پہلی رات عورت کا نروس ہونا سنا تھا، شاید یہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر فیملی کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں نئے ماحول اور ایک نئے رشتے میں جڑنے جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن مرد کی بدحواسی وہ بھی بیوی کے پاس بیٹھتے ہی شروع ہو جائے تو حیران ہونا تو ایک لازمی سا امر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اتنا بدحواس ہو رہا تھا۔ میرے پاس بیٹھتے ہی اس کی آواز میں کپ کپاہٹ سی تھی، ایک ہچکچاہٹ سی تھی جو میں نے محسوس کی، جیسے وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ بمشکل اپنا گلا صاف کر کے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا، حالانکہ موسم بھی ٹھنڈا تھا۔ کبھی وہ اپنا پسینہ آستین سے اپنے ماتھے سے صاف کرتا تو کبھی ٹیشو پیپر سے۔ پھر جیسے ہی کچھ یاد آیا اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی اس پر لاحق ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے سجاد کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ بالکل برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ میں اس کی بدحواسی دیکھ کر، اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے پریشان ہوئی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ کچھ ہکلا بھی رہا تھا۔ میرا دماغ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے مسئلہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیوں نظریں چرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ شاید اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے سجاد، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میں نے ہمدردی کے طور پہ سجاد کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا۔ یہ دیکھ کر تو میں خود بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ذرا سی ہمدردی کا مجھے سجاد سے اس طرح کا رد عمل ملے گا۔ وہ فوراً سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا تکیہ بیڈ سے اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تم اپنے کپڑے تبدیل کر کے سو جانا اور لائٹ بند کر دینا، مجھے روشنی سے سخت چڑھ ہے۔ میں ہکا بکا سجاد کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج کی رات کے حوالے سے میں نے بھی بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن جو رویہ سجاد نے میرے ساتھ اپنایا تھا میں اس رویے پہ حیران تھی۔ سجاد نے یہ کہہ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھا اور سو بھی گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی کچھ دیر تو غور سے سجاد کو دیکھتی رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ شادی کی پہلی رات مجھے اپنے شوہر سے ایسے رویے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنا لباس بدلا، روتے ہوئے اپنا چہرہ دھویا۔ جس کے لیے آج میں سجی سنوری تھی اسے تو میری پرواہ تک نہیں تھی۔ رات کو روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو سجاد کمرے میں نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس سے نہ جانے دھیمی آواز میں کیا بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری ساس مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، ناشتے کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ گھر میں کام کرنے کے لیے ایک نئی ملازمہ موجود تھی، اسی نے ناشتہ بنایا، ٹیبل پر سجایا، کیونکہ میرے سسرال میں صرف سجاد اور میری ساس ہی رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں ناشتے کے دوران بھی سجاد کے چہرے پر ایک بدحواسی قائم تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے، وہ بار بار میری طرف دیکھتا اور نظریں چرا لیتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا لیکن سجاد میرے پاس تک نہیں آیا اور اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ میں سوچ سوچ کے تھک چکی تھی کہ سجاد کی بے رخی کا مقصد کیا ہے۔ اس سے وجہ بھی پوچھ چکی تھی کہ وہ کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہے، لیکن اس نے مجھے اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کبھی سر درد کا بہانہ کرتا، کبھی پیٹ درد کا، کبھی بی پی کے ہائی ہو جانے کا، لیکن ایک رات تو میں نے سوچ لیا کہ آج میں وجہ جان کر ہی رہوں گی۔ رات کو جب سجاد کمرے میں آئے تو وہی ایک بدحواسی چہرے پر چھائی ہوئی تھی، مجھ سے آج بھی کترانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ کے بجائے صوفے پہ جا کر لیٹ گئی۔ میں نے کہا کہ سجاد
आप बेड पर आराम से सो जाएं, शायद सोफे पर सोने की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, तभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सोफे पर मैं सो जाती हूँ। सज्जाद ने मेरी बात पर कोई भी इख्तलाफ नहीं किया और बेड पर जाकर लेट गए। जैसे ही वो नींद में गए, मैं उठकर बेड पर आ गई और सज्जाद के करीब होकर लेट गई। वो उस वक्त गहरी नींद में थे। पहली बार मैंने उनका चेहरा बड़ी गौर से देखा था। एक खूबरू नौजवान थे वो, फिर मेरे शौहर भी थे। एक फितरी सा रिश्ता था। मैंने उनके बाजू पर सर रखा। अभी मुझे सर रखे बस कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि झटके से सज्जाद की आंख खुली। ये देखकर मैंने फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसे लगे कि मैं सो रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि ये देखकर सज्जाद मुझे अपने बाजू से कभी भी पीछे नहीं करेंगे, शायद अपने हिसार में ले लेंगे, सारे फासले मिटा देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे बड़ी बेदर्दी से पीछे को धकेला था। मेरी आंख खुल गई थी। उन्होंने लैंप ऑन किया और मुझे गुस्से से देखने लगे। जितनी बड़ी अहानत मैंने सज्जाद के हाथों अपने साथ होते देखी थी, मैं ताज्जुब से उन्हें देखने लगी। ऐसा रवैया तो बीवी के साथ कोई भी नहीं करता। वो कहने लगी कि ये क्या बदतमीज़ी है जो तुमने मेरे साथ की है। मैंने कहा कि इसमें बदतमीज़ी क्या है, आप मेरे शौहर हैं, मैं बहुत सा हक रखती हूँ आप पर। मेरी बात पर वो तैश में आ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बात कैसा मतलब भी सज्जाद निकाल सकते हैं। कहने लगे कि तुम्हें शायद अपने जज्बात पर काबू नहीं है। किस किस्म की आवारा लड़की हो तुम। चंद दिन अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम रखा, तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। सज्जाद की बातें तो मेरे होश ही उड़ा के रखती है। मेरी मोहब्बत को कैसा गंदा नाम दे रहे थे वो। मैंने कहा सज्जाद ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अपना तकिया उठाकर सोफे पे जाकर लेट गए। मैं तो अपनी नज़रों में ऐसी थी जैसे गुजर चुकी थी। बहरहाल वो रात भी मेरी रो कर ही गुजरी। रो के मैं बेहाल होकर न जाने कब सोई थी। उसके बाद मैंने सज्जाद से बातचीत छोड़ दी। बस उनका हर काम खामोशी से कर देती थी। मुझे लग रहा था कि मेरे रवैये को देखकर शायद उन्हें अपने रद्द-ए-अमल पर अफसोस होगा, लेकिन मैं हैरान थी कि उन्हें तो परवाह तक नहीं थी। एक बार मैंने उन्हें फ़ोन पर किसी से बात करते देखा। वो किसी की मिन्नत समाजत कर रहे थे कि वो उससे मिल लें, एक मुलाकात कर लें। मैं दरवाजे पे खड़ी थी। सज्जाद यूँ किसी की मिन्नत कर रहे थे कि अगर वो मिलने के लिए ना मानी तो न जाने खुद को क्या कर बैठेंगे। मैं समझ गई थी कि शायद वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं और मुझसे शादी उन्होंने अपनी वालिदा के कहने पर की है, इसीलिए वो मुझसे दूर भागते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अगर उन्होंने ये रिश्ता अपनी वालिदा की वजह से भी कबूल किया था तो मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही थी। अब अगर मैं ये बात अपने घर जाकर कहती तो मेरा ये घर टूट के बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने ये बात अपनी सास से कही। कुछ देर तो मेरी सास मुझे बेयकीनी से देखती रही। कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूर है कि सज्जाद अभी शादी नहीं करना चाहता था और मैं बीमार रहने लगी थी, इसलिए मुझे ख्वाहिश थी कि मरने से पहले मैं अपने बेटे की शादी देख सकूं। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में पहले से कोई लड़की नहीं है। शायद हर माँ को यही लगता है। मैंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई है, जब भी वो मुझे करीब नहीं आने देते। उन्होंने आज तक कभी मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की। ये सुनकर मेरी सास परेशान हो गई थी। कहने लगी कि मैं हरगिज़ भी तुम्हें ऐसा मशवरा नहीं दूंगी कि तुम अपने मैके में चली जाओ। अगर ऐसा है तो मैं खुद सज्जाद से बात करूंगी। वो तुम्हें ज़रूर बीवी का हक देगा और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी भी गुजारेगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं जानती थी कि इस बहस का कोई भी हासिल वसूल नहीं है। मैंने खुद सज्जाद को फ़ोन पर किसी लड़की से बात करते सुना था। वो यकीनन किसी और लड़की से ही बात कर रहे थे, उससे मुलाकात भी करना चाहते थे। रात को खाने के बाद जब मैं किचन में बर्तन धोने लगी तो मेरी सास ने कहा कि मैं जाकर आराम करूं और सज्जाद से कहने लगी कि वो उनके कमरे में आएं। ये सुनकर मेरा दिल और भी ज़ोर से धड़कने लगा था कि ना जाने मेरी सास की बात का सज्जाद नया कौन सा मतलब निकाल कर मुझे ताने और तशने सुनाएंगे। रात को जब सज्जाद मेरे कमरे में आए तो काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले रोज़ जब वो ऑफिस से वापस आए तो उनके साथ एक और अजनबी शख्स था।
सज्जाद ने उसका तारुफ अपनी वालदा से दोस्त की हैसियत से करवाया कि वो उनका दोस्त है और दुबई से यहाँ आया है, इसलिए 1 हफ्ता घर पर ही रहेगा। किसी अजनबी का घर पे रहना एक अजीब सी उलझन थी। बहरहाल मैं कोशिश भी ये करती रही कि मैं घर का काम जल्दी से समेट कर अपने कमरे में चली जाऊं। रात को जब मैं कमरे में आई तो सज्जाद ने मुझे गुलाब का गजरा हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर मैं हैरान हुई थी। शादी के बाद पहली बार उन्होंने मुझे गुलाबों और कलियों का गजरा पहनने के लिए दिया था। आज उनके चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कान भी थी। मैंने खुशी से वो पहन लिया और फिर मेरे साथ बेड पर ही लेटकर मुझसे बातें करने लगे। मेरा हाथ अपने लबों पर लगाकर मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो उनके बदले रवैये पे हैरान थी, लेकिन बातों के दौरान ही न जाने कैसे मुझे गहरी नींद आ गई। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो सज्जाद मेरे बराबर नहीं लेटे थे। मेरा सर भारी हो चुका था, लेकिन मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि मेरे शौहर ने मुझसे रिश्ता कायम कर लिया है। उस दिन सज्जाद बहुत खुश थे, बार बार मेरी तारीफ भी कर रहे थे और मैं भी उनके साथ ठीक से रहने लगी थी। वो रोज़ ही रात को मेरे लिए गुलाब और कलियों के गजरे लाते और फिर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगते और मैं बातें सुनकर ही सो जाती और मुझे सज्जाद से कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन सज्जाद के दोस्त की बेबाक नज़रों से मैं परेशान होने लगी। नाश्ते के दौरान भी वो मुसलसल मुझ पर नज़रें जमाए मुझे देख रहा होता। सज्जाद भी उसके बराबर ही बैठे थे और शौहर तो ऐसी नज़रों को फ़ौरन से पहचान जाता है, लेकिन मैं हैरान थी ये सज्जाद ने कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। एक बार रात के वक्त मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी। सज्जाद उन्हें डॉक्टर पर ले गए। उसे घर पर सिर्फ मैं ही थी, यहाँ सज्जाद का दोस्त। मैं अपनी सास की वजह से बेहद परेशान थी, इसलिए लाउंज में ही चक्कर काट कर सज्जाद का इंतज़ार करने लगी। सज्जाद का दोस्त गेस्ट रूम में सो रहा था। कुछ देर के बाद कमरे से बाहर निकला तो मुझे लाउंज में देखकर बड़े आराम से सोफे पे बैठ गया। मुझे उसका ये बेतकल्लुफ़ सा अंदाज़ बहुत बुरा लगा। उससे मुझे देखते ही अपने कमरे में चले जाना चाहिए था, इससे पहले कि मैं अपने कमरे की तरफ जाती। मुझसे कहने लगा, भाभी जान प्लीज़ मैं 1 कप चाय पिला सकती हैं? उसके पुकारने का अंदाज़ मुझे और भी बुरा लगा था। मुझे मजबूरन उसके लिए चाय बनानी पड़ी, लेकिन जैसे ही चाय का कप मैंने उसके हाथ में दिया, चाय के कप के साथ उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसकी फजूल हरकत देख के मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कमीनगी से हंसी हंस रहा था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और कहा, आप शर्म नहीं आती आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए? वो मेरी बात पर मुझे नाफहमी से देख के ड्रामाई अंदाज में कहने लगा, कैसी शर्म? जिसने की शर्म फूटे उसके करम, और मेरे करम तो आजकल वैसे ही बड़े रोशन चल रहे हैं। मुझे वो शख्स निहायत ही बदतमीज़ सा लगा था। उस वक्त मैं अकेली थी, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उससे बहस तवील करूं। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और रात को न जाने किस वक्त मेरी सास और सज्जाद वापस आए थे। कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला। सज्जाद काफ़ी परेशान थे। मैंने सास की खैरियत पूछी तो कहने लगे कि हाँ वो ठीक हैं, बीपी हाई हो गया था। वो बेहद परेशान थे, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें उनके दोस्त की घटिया हरकत के बारे में बताकर मज़ीद परेशान करूं। लेकिन मैं सोच चुकी थी सज्जाद को बता दूंगी कि उसका दोस्त अच्छा नहीं है, उसे घर में बाहर किसी होटल में रख लें। लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही रोज़ सज्जाद का दोस्त सामान बांधे वापसी की तैयारी कर चुका था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा है मुसीबत टली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तो असल आजमाइश अब शुरू हुई है। इस बात को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मेरा सर चकराने लगा, जी मतलाने लगा। जो भी खाती मुझे उल्टी हो जाती और मेरी सास मुझे डॉक्टर पर ले गई। जो खुशखबरी डॉक्टर ने सुनाई, मेरी सास बेहद खुश थी। खुश तो मैं भी बहुत थी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे माँ का दर्जा दिया था और मेरी सास मुझे चूमने लगी, प्यार करने लगी। मुझे सज्जाद का बेचैनी से इंतज़ार था, मगर जब सज्जाद ऑफिस से वापस आए तो मेरी सास ने उन्हें जब ये खुशखबरी सुनाई तो उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। मुझे तो ये लग रहा था कि सज्जाद ये सुनकर ही खुश हो जाएंगे, लेकिन उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी और वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। कमरे में जाते ही मुझसे कहने लगा कि उसे ये औलाद नहीं चाहिए, इसलिए मैं अबॉर्शन करवा दूँ।
अब भी वो बदहवासी के आलम में था। जो परेशानी सजाद के चेहरे पे छाई हुई थी, मैं वो समझने से कासिर थी। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग तो औलाद का सुनकर खुश हो जाते हैं। वो कहने लगे कि उन्हें बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है, इसलिए ये बच्चा ज़ाया करवा देगा। मैंने कहा, मैं अपनी सास से ये बात कह दूंगी, मैं क्यों अपनी गोद उजाड़ती। मेरा ये कहना था कि सजाद बड़े जारहाना अंदाज से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, अगर अम्मी के सामने एक लफ्ज़ भी तुमने अपनी ज़बान से निकाला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगी। मैं सजाद के इस किस्म के रवैये को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। उसकी आंखों में उसका खून सा उतरा हुआ था। मैं उसे देखकर खौफ महसूस कर रही थी। अगर मैं इस वक्त कुछ भी कहती तो शायद वो वाकई मेरे साथ कोई बुरा सलूक कर बैठता। मैं खामोश हो गई। अगले रोज़ जब मुझे बहाने से वो हॉस्पिटल ले गया, अपनी वालदा से कहने लगा, मुझे चेकअप के लिए ले जा रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे क्यों लेके जा रहा है। मेरे ज़ब्त का बहुत बड़ा इम्तिहान था। शादी के बाद औरत यही चाहती है कि वो माँ बने, और मेरा शौहर ये अपनी औलाद का कातिल बन गया था। पूरे रास्ते में रोती रही और सजाद मुझे घूर घूर कर देखते रहे। हॉस्पिटल में ले जाकर जब ये बात सजाद ने लेडी डॉक्टर से कही तो पहले तो वो हैरान होकर सजाद को देखने लगी। फिर मुझे चेकअप के लिए अलग कमरे में ले गई ताकि मेरा मुआयना कर सकें। लेकिन अलग कमरे में जाते ही मैंने रोते हुए लेडी डॉक्टर की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। वो मेरा बच्चा ज़ाया ना करे। वो मेरी बात समझकर मेरा साथ देने को तैयार हो गई। कहने लगी, तुम परेशान मत हो। कुछ देर बाद ही वो मुझे वापस सजाद के पास ले गई। कहने लगी, आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है, अगर इसका अबॉर्शन किया गया तो ये मर जाएगी, इसलिए मैं इनका अबॉर्शन नहीं कर सकती। सजाद खामोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत सी मेडिसिन दे दी और आराम का मशवरा भी दे दिया। मैं घर आ गई और सास ने मेरे लिए मुलाजमा रख दी, लेकिन सजाद बेहद परेशान थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उनकी परेशानी में इजाफा होने लगा। वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीने लगे थे और मैं वजह पूछती तो कहते, मुझे बच्चों से नफरत है, मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता, मैं इसे प्यार नहीं दे सकता। ये सुनकर मुझे हैरत हो रही थी कि कैसे कोई बाप अपने बच्चे को अपनी मोहब्बत से महरूम कर सकता है। एक बार मैं काम में मसरूफ़ थी कि जब मेरे मोबाइल पर कॉल आई कि सज्जाद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, और ये सुनकर तो मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। मैं भागी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंची थी। सज्जाद के सर पर और टांग पर पट्टियां बंधी हुई थी। अल्लाह ने जान तो बचा दी थी, लेकिन टांग की हड्डी टूट गई थी। 6 माह का बेड रेस्ट था। मैंने सज्जाद की खूब खिदमत की थी, उनका सहारा बन गई थी, लेकिन अब वो मुझे कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा से नज़र आते थे। बार बार मुझे देखते, फिर नज़रें बदल लेते। एक दिन मुझसे कहते कि तुम बहुत अच्छी हो, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये बात सुनकर मुझे सज्जाद पर हैरत होती थी। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? शायद टांग की हड्डी टूटने की वजह से दिल बर्दाश्त हो गए थे। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस चंद माह की बात है, आपके पाँव पर आप फिर से खड़े हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर कहने लगे, जो खामी मुझ में है तुम अगर जान जाओ तो नफरत करोगी मुझसे। ये कहते हुए उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा, सज्जाद, मैं आपकी बीवी हूँ, आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? मुझे लगा वो ये समझ रहे हैं कि अभी कभी भी वो चल नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे उनसे मोहब्बत नहीं रहेगी। मैंने उनके हाथों को लबों पर लगा लिया। मैंने कहा, आप एक औरत की मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते कि वो अपने शौहर को किस हद तक चाह सकती है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपको कभी भी किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती। ये कहकर मैं सज्जाद के साथ लग गई थी। कुछ देर तो वो चुप रहे, फिर कहने लगे, नहीं, कभी औरत नामुकम्मल मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती, उसके लिए उम्र भर की कुर्बानी नहीं दे सकती। ये बात सुनकर मैंने नाफहमी से सज्जाद को देखा था, जिनके आंसू तवातर से बह रहे थे। कहने लगे, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं शायद पागल सा हो गया था, इसलिए एक ऐसा कदम उठा लिया कि तुम अगर जान जाओ तो मुझे अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाओगी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, ना चाहते हुए भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा, सज्जाद, आप क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं?
मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर सज्जाद ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर जब्त बांधा था। फिर कहने लगे कि जो बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है वो मेरा नहीं है। अल्फाज थे कि कोई धमाका जो मेरे सर पर फटा था। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। सज्जाद, मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाएं। मैंने आपके अलावा किसी को नहीं चाहा। मैं रोने लगी थी। वो कहने लगे, मैं जानता हूँ। फिर जो इंकशाफ सज्जाद ने मेरे सामने किया, मैं सांस लेना भूल गई थी। कहने लगे कि वो मुझे कभी भी औलाद नहीं दे सकते थे क्योंकि वो नामर्द हैं। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। ये कैसे मुमकिन था? फिर कहने लगे कि मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वालिदा ने शादी करवा दी। मैं अपनी खामी तुम पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे सामने बहाने बनाने लगा। लेकिन फिर मुझे तुम अच्छी लगने लगी। मैं तुम्हें खोने से डरने लगा, इसलिए मैंने गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लिया। अपने एक दोस्त को घर ले आया और तुम्हें नशे के गजरे लाकर देने लगा। तुम गहरी नींद सो जाती थी तो मैंने कमरे में अपने उस दोस्त को भेज दिया। ये सुनकर लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया। ये कैसा इंकशाफ था जो वो मुझ पर कर रहे थे। कहने लगे, वो रात मेरी कांटों पर गुजरती थी। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था कि कहीं सच जानकर तुम मुझे छोड़ ना दो। लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं कि उसकी औलाद को तुम्हारे वजूद में बर्दाश्त करूं। ये सुनकर मैं किसी करंट की मानिंद सज्जाद से पीछे हटी थी। मुझे लगा मेरा दम घट जाएगा। मैंने फटी फटी आंखों से सज्जाद को देखा था। वो तड़पने लगे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो और इस बच्चे को ज़ाया कर दो। मुझे लगा मेरी आंखें पत्थर की हो गई हैं। मैं फौरन से सज्जाद से पीछे हट गई। मैंने कहा, आपको एहसास है कि आपने मेरे साथ क्या किया है? आप अगर ये बात मुझे पहले कह देते तो मैं आपको आपकी हर खामी समेत अपना लेती, लेकिन आपने अपने ऐब को छुपाने के लिए मुझे गुनाहों के दलदल में फेंक दिया। मैंने सज्जाद से तलाक नहीं ली थी, लेकिन वापस मैके चली गई। उसके नाम पर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सज्जाद कई बार अपने गुनाह की माफ़ी मांग चुके हैं। मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही। आप ही लोग बताइए कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी।